अपन कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ना था, सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन, द गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। Subsection 2, every court of a session shall be presided over by a judge to be appointed by a high court. Third, the high court may also appoint additional session judge to exercise jurisdiction in a court of session. Fourth, the session judge of one session division may be appointed by the high court to be also an additional session judge of another division, and in such case he may set for the disposal of case at such place or places in the other division as the high court may direct. Fifth, where the office of the session judge is vacant, the High Court may make arrangement for the disposal of any urgent application which or may be made or pending before such court of session by an additional session judge, or if there be no additional session judge, by a chief judicial magistrate in the session division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such obligation. 6. The Court of Session shall ordinarily hold its sitting at such place or places as the High Court may by notification specify, but if any particular case the Court of Session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witness to hold its sitting at any other place in the session division, it may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein. 7. The session judge may from time to time make order consistent with the Sanhita as to the distribution of business among such additional session judge. भाई सेशन जज पूरे मसले थोड़ी ना खुद देख पाएगा बेटा, ना। जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश है, ठीक है। प्रधान है ना। अब प्रधान के पास हजारों काम होते हैं, सबकी कंप्लेन सुनना, सबकी व्यवस्थाएं देखना, कोर्ट के अस्त व्यस्त चीज़ों को ठीक करना, ये सारी व्यवस्थाएं किसकी होती हैं? सब प्रधान के मत्थे आता है। तो भाई अब उसको उसके साथ साथ उसको न्यायालयीन काम भी है, और एडिशनल सेशन जजेस हैं, उनको क्या काम डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने में से कौन से केस जाएंगे, वो सब ये कौन की पावर होती है? ये सेशन जज की पावर होती है। The session 8. The session judge may also make provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to act by an additional session judge, or if there be no additional session judge, by the chief judicial magistrate, and such judge or magistrate shall be deemed to have a jurisdiction to deal with any such application. है ना। लेकिन ये बेसिकली आप अभी भी समझ लो कि ये केवल चार्ज होता है, ठीक है। तो अपने आप को अगर सीजीएम को एक दिन के लिए पावर मिली तो ये नहीं हो जाएगा कि सीजीएम साहब को लगने लगे कि सेशन जज है, ठीक है ना। उनकी इनेबिलिटी पे प्रोविज़न है कि भाई किसी समय पे वो एक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एडिशनल सेशन जज के पास पावर होगी, और एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो फिर सीजीएम के पास पावर होगी। सीजीएम भी नहीं है, ऐसा होता नहीं है ना बेटा कोर्ट में कभी, ठीक है सर। कि एक कोई ना मिले। Explanation. For the purpose of this, the appointment does not include the first appointment, posting or promotion of a person by the government to any service or post in connection with the affairs of the union or of the state, where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by the government. ठीक है, ये प्रमोशन वाला सीन है सर। उसको उतना नहीं लेना। यहाँ आओ तुम, ये जो पढ़ना है 6th वाला पढ़ो फिर से। The Court of Session shall ordinarily hold its sitting at such place or places the High Court may, by notification specified. But if in any particular case the Court of Session is of opinion that it will tend to the general convenience of the party and witness to hold its sitting at any other place in the session division, it may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witness therein. ठीक है ना। बहुत हीनियस ऑफेंसेस जब होते हैं ना, और जिसमें लगता है कि भाई इसको लाते ही लाते ट्रायल ख़त्म हो जानी है, या उसको लगता है कि इस आदमी को अगर कोर्ट तक बुलाएंगे तो ये पहुंच नहीं पाएगा कोर्ट तक। बहुत सारे केसेस रहते हैं, बहुत सीरियस ऑफेंसेस रहते हैं जिसमें बहुत पब्लिक इन्वॉल्व होती है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक दो एग्जांपल तुम्हें दे सकते हैं, मतलब तुम्हें समझाने के लिए। आसाराम बापू हो गए, राम रहीम हो गए, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं, इनके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब इनकी ट्रायल है, वो एक लीगल एस्पेक्ट है, लेकिन हमको ये भी तो देखना है कि ना किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो, या उसी आदमी का नुकसान नहीं हो जाए भाई जिसके लिए कोई आ रहा है। तो ऐसे केसेस में उनका एग्जामिनेशन हम वहीं कर देते हैं। मतलब सेशन को, जज को लगता है कि नहीं, इनका एग्जामिनेशन कहीं जेल में जाके करना पड़ेगा, अच्छा, तो फिर वहीं होगा।
तो हम तुम्हें बेसिकली बताने की ये कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट कोई ऐसी जगह नहीं होती है जो चार दीवारों के अंदर हो। अगर कोई सीट लगा के कोई जज कहीं पर बैठ के अगर अपनी कार्रवाई करने लगता है तो वो भी कोर्ट मानी जाती है। ठीक सर। बहुत अच्छा एग्जांपल तुम्हें दे दें, जैसे जे तुम लोग के मोबाइल चालान होते हैं तो छोटी कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको चालान के वो निकलवाने के लिए वो वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है। तो उस समय पे वो वहाँ जो बैठा है ना रोड पे भी, अपनी गाड़ी में भी बैठे, तो वो कोर्ट है। अच्छा ठीक है सर। सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। In every district there shall be established as many court of judicial magistrate of the first class and of the second class, and at such places the government may, after consultation with the High Court, by notification specify. Provided that the state government may, after consultation with the High Court, establish for any local area one or more special court of judicial magistrate of the first class or of the second class to try any particular case or particular class of cases. And where any such special court is established, no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of case for the trial of which such a special court of judicial magistrate has been established. स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करने के बाद जितनी चाहे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट राज्य सरकार बना सकती है और उसमें हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है ना? और ये पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस में ये प्रोवाइडेड है। पढ़ो आगे, पढ़ो। पढ़ लिया। स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड है ना, कोई पर्टिकुलर केसेस हैं या किसी देखो कई जगह बहुत पेटी ऑफेंसेस होते हैं, है ना, उनके मैटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हाई कोर्ट ने बोला कि जज साहब को इन पेटी ऑफेंसेस के लिए वहाँ पे लगा दो, तो वहाँ पे पता चला केवल पेटी ऑफेंसेस के लिए कोर्ट बैठी है। बहुत अच्छा एक एग्जांपल तुम्हें दे रहे हैं, कई जगह चेक के केसेस देखने के लिए अलग से कोर्ट बनी हुई है, डिसऑनर के लिए, है ना, 138 के मैटर्स के लिए चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं। अब उन चेक बाउंस के केसेस के लिए अलग से कोर्ट बना दी गई, तो अब वो सारे मैटर्स वही सुनेगी। अब वो कोई बड़ी कोर्ट नहीं है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही है, ठीक है ना। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा और उनने स्पेशल कोर्ट बना दी उसके लिए। ठीक सर। कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 11 में आप देखिए फिफ्थ लाइन, यहाँ पर्टिकुलर केसेस और टू पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस, इसमें और इसमें इन दोनों में क्या अंतर है? पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, जैसे पर्टिकुलर केस मतलब किसी हो सकता है कि कोई एक केस ही ऐसा होता नहीं है, वैसे हम बता दें कि पर्टिकुलर एक या दो केस को डील करने के लिए आपके पास भेज दिया जाए कि भैया आप इन्हीं को ट्राई करो, है ना। कभी कभी होता है बहुत एक्सेप्शनल केसेस में, लेकिन ऐसा होता नहीं, जनरली क्लासेस ऑफ केसेस ही रहते हैं वो, कि भैया जैसे 138 और फला और ढिका या मनी रिकवरी के लिए आप देखोगे या ऐसे करके करते हैं। ठीक सर। सबसेक्शन 2 द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। सबसेक्शन 3 द हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स टू इट बी एक्सपीडिएंट or necessary confer the power of judicial magistrate of first class or of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in civil court. हाई कोर्ट क्या करेगी, किसी भी जुडिशियल मेंबर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर दे देगी। हाई कोर्ट का काम है कोर्ट एस्टेब्लिश करना स्टेट गवर्नमेंट का, और जजेस को नियुक्ति वगैरह सब ऊपर ले जाना हाई कोर्ट। बहुत बढ़िया, हाई कोर्ट का काम है ये। ठीक सर। ठीक है ना। और किसी भी जुडिशियल मेंबर को, देखो वहाँ पे लिखा है मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट फंक्शनिंग एज अ जज ऑफ अ सिविल कोर्ट, देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपीडिएंट और नेसेसरी कन्फर पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ऑन एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज अ जज इन अ सिविल कोर्ट। कोई सिविल कोर्ट में जज है, बेसिकली ऐसा तुमको बता दें कि जो नियम है भाई क्या होता है कि हर कोई पर्टिकुलर केस के लिए कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, एक नॉर्मल नियम बना दिए गए हैं, उनके हिसाब से चलती है व्यवस्था। ठीक है ना। तो कोई भी जुडिशियल मेंबर होता है ना, जो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जज इन अ सिविल कोर्ट। जज इन अ सिविल कोर्ट मतलब जैसे हम तुमको बताएं कि कोई भी नियुक्ति होती है वो सिविल कोर्ट के जज के रूप में होती है, ना कि क्रिमिनल कोर्ट के जज के रूप में। अब ये पावर्स कौन देता है, ये हाई कोर्ट देती है पावर्स, ठीक है, कि अब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गए हो, अब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गए हो। क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होना या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होना आपको क्रिमिनल पावर्स देना होता है, क्रिमिनल की पावर्स। ठीक है। और आप जब जज होते हो सिविल कोर्ट के, तो क्योंकि व्यवहार न्यायाधीश हो आप,
और व्यवहार कोर्ट है, मतलब सिविल कोर्ट है और आप सिविल जज हो। ठीक। बस आपके पास सिविल कोर्ट की पावर है और सिविल जज के रूप में जो भी पावर आपको सिविल प्रोसीजर में मिली है वो सब होंगी आपको, लेकिन क्रिमिनल की कोई पावर नहीं होगी। क्रिमिनल की पावर कब होगी? जब ये बोलना है कि हाई कोर्ट चाहे, लेकिन वो नियम से बना हुआ है ना, कि भैया आप इसमें कोई वो है ईयर के इतने सालों बाद ऐसा होता है कि सेकंड क्लास बनता है फिर फर्स्ट क्लास बनता है? हमें याद है, जितना हमें आइडिया है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर तो अपन को शायद तुरंत मिल जाती है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास की पावर, है ना। मतलब सेकंड क्लास की तो शायद मिल ही जाती हैं, और एक आध साल में जैसे आप परमानेंट होते हो तो JMFC भी हो ही जाते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। थोड़ा बहुत हम कंफ्यूज रहे हो सकते हैं क्योंकि हम उस सर्विस में नहीं है, लेकिन हाँ इतना हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है। Section 10. The Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate. In every district, the High Court shall appoint a Judicial Magistrate of the first class to be the Chief Judicial Magistrate. Subsection 2. The High Court may appoint any Judicial Magistrate of the first class to be an Additional Chief Judicial Magistrate, and such magistrate shall have all or any of the power of the Chief Judicial Magistrate under the Sanhita or under any other law for the time being in force, as the High Court may direct. हर एक डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट क्या कर सकता है? एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता ठीक है ना। सबसेक्शन जनरली क्या होता है, 5-7 साल की सर्विस के बाद CJM बना दिया जाता है, ठीक है ना। Subsection 3. The High Court may designate any judicial magistrate of the first class in any subdivision as a subdivisional judicial magistrate and relieve him of the responsibilities specified in the section or occasion thereby. ठीक है। Subsection 4. Subject to the general control of the Chief Judicial Magistrate, every subdivisional judicial magistrate shall also have and exercise such power of supervision and control over the work of judicial magistrate other than additional Chief Judicial Magistrate in the subdivision as the High Court may by general or special order specify in this behalf. सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आया समझ में। सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ CJM एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। उसको तुम छोड़ दो, तुम तो ये समझ लो कि जो CJM होता है ना, CJM के पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो काम है उनको कंट्रोल करने की पावर होती है। ठीक है। सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल रुक जा। मजिस्ट्रेट। पढ़। Section 11 Special Judicial Magistrates. Subsection 1. The High Court may, if requested by the central or state government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the power conferred or conferable by or under the Sanhita on a judicial magistrate of the first class or of the second class in respect to particular cases or particular classes of cases in any local area. Provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to a legal affairs as the High Court may by rules specify. Section 2. Such magistrate shall be called special judicial magistrate and shall be appointed for such term not exceeding 1 year at a time as the High Court may by general or special order direct. अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि भाई आपको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति ने क्या की हो, पोस्ट होल्ड करी हो गवर्नमेंट में, लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि उसका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो लीगल अफेयर्स का नॉलेज और लीगल अफेयर्स का एक्सपीरियंस, लीगल अफेयर्स का नॉलेज और लीगल अफेयर्स का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उनको JMFC बना सकता है, JMSC बना सकता है, लेकिन सबसे बड़ी लिमिटेशन यह क्या है कि वो 1 साल तक के लिए ही हो सकता है, 1 साल के बाद वो पावर सीज हो जाएगी। ठीक। Section 12 Local jurisdiction of a judicial magistrate. Subject to the control of the High Court, the Chief Judicial Magistrate may from time to time define the local limits of the areas within which the magistrate appointed under Section 9 or under Section 11 may exercise all or any of the power within which they may respectively invested under the Sanhita. ठीक है ना। CJM के पास पावर होती है कि भैया बताएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सा मजिस्ट्रेट काम देखेगा। आया समझ में? नहीं तो घमासान नहीं हो जाएगी अगर ये पावर नहीं हो और अगर ये रूल्स नहीं हो कि कौन कौन सा क्षेत्र देखेगा, तो कभी ये क्लियर नहीं होगा। और अगर ये क्लियर नहीं होगा तो पता चला किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई वकील साहब कुछ भी लेके आ जाएंगे, फिर कन्फ्यूज़न होगी कि ये हमारा मैटर है कि ये हमारा मैटर है, मतलब हम देखें कि हम देखें। ऐसे में तो पता चला कोर्ट के अंदर ही लड़ाई हो रही कि कौन कौन मैटर देखेगा।
इसलिए सीजीएम को भैया सीजीएम बता देगा कि कौन सा मैटर कौन देखता है, कौन से क्षेत्र में कौन देखेगा। सीजीएम बताते हैं पूरा। हम सेक्शन बता रहे हैं जनरली सबके लिए नियम बने हुए हैं। हम तो एक और चीज़ बता दे रहे हैं कि थाने भी बदलते रहते हैं। प्रैक्टिकली जब तुम देखोगे ना, तुम सोच रहे होगे जैसे गोपालगंज थाना है, ठीक है, गोपालगंज थाना किसी एक्स मजिस्ट्रेट के पास है और मोती नगर थाना किसी वाई मजिस्ट्रेट के पास है। हो सकता है 6 महीने बाद या एक समय के बाद गोपालगंज थाना वाई मजिस्ट्रेट के पास आ जाए, ठीक है ना, और मोती नगर थाना है वो एक्स मजिस्ट्रेट के पास आ जाए। तो ये थाने भी बदलते रहेंगे। तुम सोचो कि तुम्हारी एक ही थाने पर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर हो जाएगी तो चेंज भी हो जाएगी। ये सीजीएम बदलता है थाने। हाँ, जब उसका नहीं, वो नियम से बदलते जाते हैं। पावर सीजेएम की है, लेकिन वो नियम अब क्या होता है ना कि भाई रोज सीजेएम यही थोड़ी ना करता रहेगा, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से जब होंगी तो वो पावर उसके पास ही होगी, चेंज वो होती जाएंगी। कोई उससे रिलेटेड इशू आएगा तो सीजेएम देखेगा। ठीक है सर। आया समझ में? Yes, sir. Provided that the court of a special judicial magistrate may hold its sitting at any place within the local area for which it is established. कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी ये डिस्क्रिप्शन दे दिया इन लोगों को, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। That the court of special judicial may hold its sitting at any place within the local area which, जहाँ पे भैया एस्टेब्लिश हुई है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इनको मतलब स्पेशल वो नहीं मिला। कोर्ट, तुमने इतनी सारी कोर्ट देख, तुमने जिला में कोर्ट देख ली ना भैया, जिला से अलग कोई कोर्ट बैठ रही है क्या? तो नियम यही है। बहुत स्पेशल केस में अलग बात होती है, नहीं तो प्रोसीजर में जनरल रूल को सबसे पहले देखा जाता है। ये एक्सेप्शनल कुछ चीज़ ऐसी इसलिए लिखी होती है कि भाई अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी तो ये बैठेगा। इसलिए मैं अब पता चला ऐसे तो भैया तुमने स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिठा दी तो आज सिविल लाइन में बैठेगा, कल मोती नगर में बैठेगा, परसों गोपालगंज में बैठेगा। ऐसे तो पागल हो जाएगा गोल गोल घूमते घूमते। काम ना छोड़ के वो रोज जगह ढूंढेगा कि हम बैठे कहाँ। सही बात है। आया समझ में? तो ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली तुम सोचो ना यार कि तुम ऐसे रोज रोज गोल गोल घूमते रहोगे क्या? नहीं घूमोगे ना। तो कोर्ट एक ही जगह बैठती है, उसको पावर स्पेशल हो जाती है। जनरल रूल यही है। Section 2. Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and power of every such magistrate shall extend throughout the district. ठीक है। Section 3. Where the local jurisdiction of a magistrate appointed under Section 9 or Section 11 extended to any area beyond the district in which he ordinarily holds court, any reference in the same to the court of session or chief judicial magistrate shall, in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction, be construed unless the context otherwise required, as a reference to the court of session or the chief judicial magistrate, as the case may be, exercising jurisdiction in relation to the said district. ये क्या कह रहा है? आगे बढ़ा जाए। Section 13. Subordination of judicial magistrate. Every chief judicial magistrate shall be subordinate to the session judge, and every other judicial magistrate shall, subject to the general control of session judge, be subordinate to the CJM. Section 2. ठीक है ना, देख लो। जुरिस्डिक्शन जनरल कंट्रोल किसका होगा? सेशन जज का। सेशन जज का पक्का। Every chief judicial magistrate shall be subordinate to the session judge, हाँ? बिल्कुल। And every other judicial magistrate shall, subject to the control of session judge, be subordinate to the CJM. Session judge, CJM और अपना जुडिशियल मजिस्ट्रेट। Subsection to the chief judicial magistrate may from time to time make rules or gives a special order consistent with the Sanhita as to the distribution of business among the judicial magistrates subordinate to him. ठीक। Section 14. Executive magistrates. In every district, the state government may appoint as many person as it thinks fit to be executive magistrate and shall appoint one of them to be the district magistrate. ठीक है, देखो यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाएगी और उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। लेकिन आपको भी पता है जनरल रूल क्या है कि डीएम कलेक्टर ही होता है। आ गया समझ में? ठीक है। आगे बढ़ो। Section 2. The state government may appoint any executive magistrate to be an additional district magistrate, and such magistrate shall have such of the power of the district magistrate under this Sanhita or under any other law for the time being in force as may be directed by the state. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टेट गवर्नमेंट का आ गया, हाई कोर्ट का काम खत्म। उनको लगता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कभी भी हाई कोर्ट होगी ही नहीं, क्योंकि ये काम स्टेट का है। आया समझ में? यहाँ पे कोई रिलेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का या न्यायपालिका से थोड़ी ना है। आया समझ में? इसलिए सब काम कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी।
ठीक है जहाँ पे जुडिशियल काम की बात आएगी वहाँ पे सेशन जज आता है, वहाँ पे हाई कोर्ट आते आती हैं। है। यहाँ पे कोई रोल नहीं है हाई कोर्ट का। ठीक है सर। बेटा आज की फाइलें निकाल सारी, हैं? नहीं निकाल ना, वो तो ठीक हो जाएगा। Section 3. Whenever in the consequence of the office of district magistrate become vacant, any officer succeeds temporarily to the executive magistrate administration of the district, such officer shall, pending the order of the state government, exercise all the power and perform all the duties respectively conferred and imposed by the Sanhita on the district magistrate. ठीक है। ठीक है। तो दिक्कत है उसमें बताओ। नहीं सर, क्या कह रहा है ये वैसे? Whenever in, यही पढ़ रहे हो ना थर्ड क्लॉज। हाँ Whenever in consequence of the office of DM become vacant, जब DM का ऑफिस वैकेंट होगा, any officer succeeds temporarily to the executive administration of district। भाई DM जिस दिन नहीं होगा उस दिन कोई ना कोई तो चार्ज में होगा, ठीक है ना, तो वो उनके ऑफिस अफेयर्स को टेक ओवर करेगा, है ना। सच ऑफिसर शैल पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑल पावर्स, है ना। लेकिन तुमको हम बता दे रहे हैं कि वो जब तक तुमको ये भी समझना पड़ेगा कि जब तक कोई व्यक्ति चार्ज में होता है, तब चार्ज में होता है तो केवल चार्ज वाली पावर्स होती हैं। तुम सोचो कि पूरी फुल अथॉरिटी होती है, जो कि मतलब तुम समझ लो कि एक दिन तुम्हें CM बना दिया जाए, फालतू की बात कर रहे हैं और छोड़ दो ये फालतू का, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। एक दिन के लिए तुम्हें DM बना दिया, चार्ज में आ गए तुम, तो DM की तो इतनी पावर्स हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो वो सारी की सारी एक्सरसाइज नहीं कर लेगा एक दिन बन के, पता चले पूरा अस्त व्यस्त करके चला जाए। उसको जितने जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, जो प्रोसीजरल होते हैं, है ना, कि कोई केस है तो उनमें डेट्स बढ़ जाएंगी, कुछ वो होगा तो उसमें ये बढ़ जाएगा, कुछ में ये हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे कुछ ऑर्डर्स पे अगली डेट्स के, ये सब छोटे छोटे काम होते हैं। तुम सोचो कि बड़े बड़े निर्णय एक ही दिन के वो ले लेगा, तो नहीं होता ऐसा। Yes, sir. Subsection 4. The state government may place an executive magistrate in charge of subdivision and may relieve him of charge as occasion requires. The magistrate so placed in charge of a subdivision shall be called the subdivisional magistrate. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उसके चार्ज से रिलीव करके उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना देगा। SDM भी होते हैं, आपने देखा ही है ना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक अथॉरिटी है, पर उसके अंदर ये DM SDM ये सब, हाँ ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स ही हैं। हाँ वही। इनको अलग अलग पावर्स, अलग अलग चार्जेस दे दिए, क्योंकि देखो सरकार जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो एक ही व्यक्ति को एक ही नाम देने के बाद चला नहीं पाएगी। आया समझ में? किन्हीं को कुछ पावर देनी पड़ेगी, किन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कुछ पावर देनी पड़ेगी, किन्हीं को कुछ जगह पे। अब मजिस्ट्रेट तहसीलदार भी होता है, SDM भी होता है और DM भी होता है। ये सब मजिस्ट्रेट्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट्स नहीं है। लेकिन और ये कोर्ट भी चला रहे हैं, तो कोर्ट भी चल रही है इनकी, लेकिन सबके अलग अलग पावर्स, अपने अलग अलग काम और उसका अलग अलग प्रोसीजर है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए कि एक ही व्यक्ति या एक ही पद पर सब काम करवाता जाए। Subsection 5. The state government may by general or special order subject to such control and act may deem fit to impose delegates its power under subsection 4 to the DM. Subsection 6. Nothing in this section shall preclude the state government from conferring under any law for the time being in force on a commissioner of a police all or any of the powers of an executive magistrate. ऐसा होता नहीं है, लेकिन ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को आप रोक नहीं सकते कि वो क्या करे, कमिश्नर ऑफ पुलिस को सारी पावर दे दे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, जो कि बहुत लंबा है। वो आ जाता है सेशन। अरे कमिश्नर ऑफ पुलिस बहुत बड़ी अथॉरिटी है यार, इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस बहुत अंतर है। तो ऐसा बहुत कम होता है, वो तो हमें नहीं देखा कि होता हुआ अभी तक के। Section 15. Special executive magistrate. The state government may appoint for such term as it may think fit executive magistrate or any police officer not below the rank of superintendent of police or equivalent to the known as a special executive magistrate for particular areas or for the performance of a particular function and confer on such special executive magistrate such of the power as and confer under the sign on executive magistrate as it may deem fit. ठीक है, किस राज्य सरकार चाहे तो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे के रैंक के अधिकारी को नहीं, वो क्या कर सकती है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकती है। Yes, sir. And local jurisdiction of executive magistrate. Subject to the control of the state government, the district magistrate may from time to time define the local limits of the areas within which the executive magistrates may exercise all or any of the power within which they may be invested under the Sanhita.
डीएम सबसे बड़ा होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उसमें रैंक में, बिल्कुल, उसके नीचे सारे एग्जीक्यूटिव इसलिए ये मजिस्ट्रेट्स वो कर होते रहा हैं। है ये। एग्जैक्टली। Subsection 2. Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and power of every such magistrate shall extend throughout the district. Section 70. Subordination of executive magistrate. All executive magistrates shall be subordinate to the DM. भाई ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो डीएम के नीचे होंगे, और एसडीएम को छोड़ के एक्साइजिंग पावर इन सब डिवीजन शेल आल्सो बी सबऑर्डिनेट टू एसडीएम। मतलब बेसिकली सबसे पहले डीएम आएगा, उसके नीचे फिर एसडीएम आ जाएगा, उसके बाद नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाएगा। जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, सबसे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर आगे बढ़ जाओ। कंसिस्टेंट विद द संहिता। सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए क्योंकि ये न्यायपालिका से संबंधित है। For every high court, the central government or the state government shall, after consultation with the high court, appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or the state government as the case may be. देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में, देखो फॉर एवरी हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या स्टेट गवर्नमेंट चाहे हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एक, देखो क्या लिखा है, एडिशनल पब्लिक, मतलब एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या कर सकते हैं, बना सकती है। वो क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन, अपील या अदर प्रोसीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर देखेंगे। सर ये जो अब वो कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है, और इसका पेपर वगैरह होता है, इसका क्या रहता है फिर प्रोसीजर, एडीपीओ वगैरह का? तो वो अलग है, वो आगे हैं, वो तुम्हें आगे मिलेंगे। अच्छा ये नहीं है वो, ये नहीं है वो। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन, छोड़ो, दिल्ली से अपना कोई सीन नहीं है अभी। ये नया जोड़ा गया है। कहाँ पे? ये इसका जो प्रोवाइडेड है ना, प्रोवाइडेड फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ ना, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो दिल्ली का वो तो अपने यहाँ पे भी है ना। हाई कोर्ट का क्या सीन है, हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट भी है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में भी तो वही सीन होगा जो किसी भी हाई कोर्ट में होगा। भाई हाई कोर्ट को भी जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी हाई कोर्ट को मतलब चाहे तो भैया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके क्या कर सकती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इस पे क्या कहते हैं, और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकती है। तो सेम दिल्ली के लिए ही बोल दिया कि प्रोवाइडेड दैट फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली द सेंटर गवर्नमेंट शैल, बस इधर पे एक अंतर जो आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट हट गई है ना। तो तुम्हें बस ये, तुमसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो तुम्हें पूछा जाएगा कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो बोले हाई कोर्ट करती है। किससे कंसल्ट करने के बाद, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन दिल्ली के केस में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है सर। सबसेक्शन 2 द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट one or more public prosecutor for the purpose of conducting any case in any district or local area। ठीक है। अब इससे क्या कहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में क्या कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट का मामला आ गया ना, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट आ गई, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल, अरे तो सेंट्रल के मसले भी तो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं भैया। भारत सरकार हर जगह होगी, आया समझ में, ठीक है ना। हम थोड़ी आगे बढ़ गए थे और कुछ नहीं है, तीसरे वाले पॉइंट पे आ गए थे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। ठीक है, केंद्र सरकार भी चाहे तो वो क्या कर सकती है, अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती है कि लोकल एरिया में हमारे केसेस को हैंडल किया जाए। Section 3 for every district the state government shall appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for the district, provided that the public prosecutor or additional public prosecutor appointed for one district may be appointed also to be the public prosecutor or an additional public prosecutor as the case may be for the another district। देखो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकती है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकती है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन वो चाहे तो क्या कर सकती है, उन्हीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। यानी दो डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। Subsection 4 the district magistrate shall in consultation with the session judge prepare a panel of names of persons who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor for the district। ये तुमने बहुत सुना होगा। देखो क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सेशन जज के साथ कंसल्ट करके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता है
कि भैया हमारे यहाँ सरकार के कितने मसले आ रहे हैं। अब सरकार के मसले जब आ रहे हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने कोई वकील तो चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज मिलके एक पैनल बनाएंगे लोगों की, है ना, और जो उनमें से फिट होंगे उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसका डिस्ट्रिक्ट पैनल का। में जो नेम रखते हैं उसका कोई वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? बिल्कुल एलिजिबिलिटी है, नोटिफिकेशन निकलता है, फॉर्म भरे जाते हैं, उनके बाद फॉर्म का स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी होने के बाद उनमें से पैनल में से लिस्ट को एक अब फाइनल लिस्ट को अपलोड किया पेपर जाता है वगैरह कि होता नहीं पेपर नहीं होता है, क्योंकि ये जनरली एक्सपीरियंस लॉयर्स होते हैं। Subsection 5. No person shall be appointed by the state government as the public prosecutor or additional public prosecutor for the district unless his name appear in the panel of names prepared by the district magistrate under subsection 4. कोई भी आदमी कोई वकील आके कहेगा कि साहब हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए, नहीं, पैनल में जिनके नाम है जो सिलेक्ट हुए वही माने जाएंगे। लेकिन सर ये जो पैनल में नेम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ही डिस्कशन होगा और सब सेशन जज का, ये पूरा इनको दे दिया है डिस्कशन। अगर तुमको वैसे बताएं तो बहुत सारी अन्य पावर्स भी होती हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिटिकल पर इंफ्लुएंस है उसका अपने से कोई लेना देना नहीं है। Subsection 6. Notwithstanding anything in subsection 5, where in a state there exists a regular cadre of prosecuting officer, the state government shall appoint a public prosecutor or an additional public prosecutor only from among the person constituting such cadre. अब देखो ये परेशानी है कि क्या होता है कि भाई रेगुलर कैडर है, रेगुलर कैडर मतलब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पेपर दे के जो मतलब बेसिकली एडीपीओ का एग्ज़ाम होता है ना, एडीपीओ का एग्ज़ाम देने के बाद जो बन के आए थे और जो प्रमोट हुए हैं, है ना, या वो रेगुलर कैडर में, तो उन्हीं में से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। लेकिन बहुत कम देखने मिलता है, कारण ये नियुक्तियां भी कम है और वकील का कंपैरिजन में वकील ज़्यादा मिल जाते हैं, सिलेक्टेड एडीपीओस कम मिलते हैं, इसके कारण हाँ बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। Provided that wherein the opinion of the state government no suitable person is available in such cadre for such appointment, that government may appoint a person as a public prosecutor और फ्रॉम द पैनल, तो वो पैनल से ढूंढ लेगी। explanation for the purpose of पढ़े रहेंगे regular cadre of prosecuting means a cadre of prosecuting officer where includes there the post of public prosecutor by whatever name called and which provides for the promotion of assistant public prosecutor by whatever name called to that post. ठीक है, ऐसे वो एडीपीओ वाले जो ऊपर बढ़ के वो बन जाते assistant हैं, बनते हैं बस असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए, उन्हीं का रेगुलर कैडर के ऊपर आदमी को। B. Prosecuting officer means a person by whatever name called appointed to perform the function of public prosecutor, special public prosecutor, additional public prosecutor or assistant public prosecutor under this Sanhita. Subsection 7. A person shall be eligible to appointed as a public स्टार prosecutor. लगा, ये पूछा जाएगा कि भैया पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो कम से कम आपकी 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको क्या कहती है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना चाहती है तो आपकी कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस पे स्टार लगा लो 8 के प्रोविज़ो पे। कोर्ट चाहे तो परमिट कर सकती है, क्या करती है, विक्टिम को, कि वो अपना वकील एंगेज कर ले, जिसको अपन जो बेसिकली प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करने का काम करता है। जो अभी अपन एक केस में अपन कर भी रहे थे, एक मर्डर के केस में आप क्या कर रहे थे, प्रोसिक्यूशन को असिस्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्यों? क्योंकि हमें पीड़ित जो आदमी मर गया उसकी माँ ने हमें एंगेज किया था कि साहब आप जो मदद सरकार की कर सकते हो आप केस में या कुछ अपनी तरफ से इनपुट दे सकते हो तो आप दो, क्योंकि हमें उसको सज़ा दिलानी है, कि ऐसे करके। तो वो काम जो विक्टिम एंगेज करने की पावर मिल रही थी हम, तो ये यहाँ से मिल रही थी कि विक्टिम एंगेज कर सकता है वकील। Subsection 9. For the purpose of subsection 7 and subsection 8, the period during which a person has been elected as an advocate or has rendered, whether before or after the commencement of the service as a public prosecutor or as an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever name called, shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate. ठीक है।